Hello, friends. A warm welcome to all of you. And in today's session, again, we are keeping ourselves with only two questions, and we are trying to see what the best we can take out of that. हर रोज हमारी कोशिश होती है कि हम समझें और देखें कि कैसे आंसर राइटिंग नहीं है, आंसर राइटिंग भी है, बट इट इज नॉट मेयरली आंसर राइटिंग। एंड कैसे उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम है, कैसे आपका थॉट प्रोसेस, कैसे आपकी पर्सनैलिटी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी उससे लिंक्ड है। यानी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोल कर ढोल पीट कर नहीं सिखाई जा सकती। और इस एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा ही है। कुछ चीजें आपको इनहेरिटेंस से मिलेंगी, कुछ चीजें आप इनकलकेट करोगे, कुछ चीजें आपको वक्त सिखाएगा और कुछ चीजें आपको ऑन द स्पॉट सीखनी पड़ेंगी। सो कीपिंग ऑल दीज आइडियाज इन माइंड, लेट्स ट्राई टू सी कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। सो इट वाज द पॉलिटिक्स ऑफ द पीरियड, it was the polities of the period within China, between China and India, and between China and USSR, that precipitated in 1962 Indo-China War. Examine. बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है। थॉट प्रोसेस अगर क्लियर होगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा, तो आई थिंक इट कैन बी अ वंडरफुल एक्सरसाइज। क्योंकि सिंपल सी बात है, चाइना, इंडिया, यूएसएसआर और उसका जियो स्ट्रैटेजिक और कोल्ड वॉर पीरियड, first 2 decades of Indian independence, our own challenges, and obviously Nehruvian era, and insecurities and Chinese approach, सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। Indo-China War 1962 was due to the path of consolidation, revisionism, and cult persona of Mao Zedong in CCP. I think well written, wonderful shot. Politics within China, Mao Zedong, representative persona of Stalin of USSR with unique flavor of peasants Masiha. The 100 Flower Campaign 1957, which proved to be too critical for CCP to rectify the mistake of freedom of expression, they embarked on the Great Leap Forward 1958 to 62 for modernization of industry and communes agriculture. At the same time, their distance from USSR increased, क्योंकि USSR's de-Stalinization, I should say, under Nikita Khrushchev, Mao's criticism of Stalinization, Mao's envy of heavy industry of USSR, increasing anti-West sentiment, some border conflict, and the USSR's eastern border. Similarly, revisionism in historical claim over border with India also resulted in friction. Very true. Thinking China as a middle kingdom and the rest, strategy of five finger and palm in northeast, criticizing Nehru's policy of NAM and a close proximity with USSR. Thus, the twin problem of China is political with respect to growing concern over inflation and death in famines due to Great Leap Forward made Mao to take radical steps. He wanted to show that he could unite China amidst chaos and famine, eliminate his opponent in CCP, then show India its place in Asian power hierarchy. Thus, it was Mao's personal ambition, short-sightedness that led to 1962 war over Ladakh's now Aksai Chin. आई थिंक वंडरफुली रिटर्न, वेरी क्लियर, वेरी सटल एंड वेरी गुड फ्लो। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मिसिंग है जो आपको तिब्बत के एलिमेंट से लेके आना चाहिए था। दलाई लामा आप अगर लेके आते तो वो भी, और किस तरीके से एक दो लाइनें और जवाहरलाल नेहरू, मतलब नेहरू की टाइम पीरियड में जो हमने एक दो चीज़ों को समझने में, या कह लीजिए हमारे जो अप्रोच थी, इट वाज मोर ह्यूमेन और मोर इमोशनल, एक दो अगर हम एक पर्सपेक्टिव से बोलें। Otherwise, I think it's beautifully written, very clear language, very wonderful vocabulary. I think it is a good effort. COVID-19 is more than a medical crisis. It has exacerbated structural inequalities, increased vulnerabilities of marginalized section, and strained social institutions. ये explain नहीं आ सकता था, ये question critically examine आना चाहिए था, क्योंकि ऐसा है नहीं। COVID-19 showcased the One Health policy is required to deal with the future pandemic. So as of now, it has exacerbated structural inequalities like COVID-19 impacted poor and vulnerable via economically wages less out-of-pocket expenditure. Marginalized sections like SC/ST women faced a challenge of dropout in school. ठीक है, चलो, at the same time, lot of hospital beds and short treatment exceeded annual salary of majority of Indians. कुछ vocabulary अच्छी हो सकती थी, कुछ आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेल्थ स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं,
कितना जीडीपी उसकी बात करते हैं आप, कुछ नेशनल हेल्थ पॉलिसी में अगर आपको चेंज बताने की बात है, आप साथ साथ में सिर्फ हेल्थ नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी जुड़ा हुआ है बाकी सोसाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर से। हॉस्पिटल तो है लेकिन सड़क ठीक नहीं है, हॉस्पिटल तो है लेकिन इक्विपमेंट नहीं है, तो गवर्नेंस सिस्टम पर भी आप थोड़ा सा बोल सकते थे। चैलेंजेस कॉज बाय साइक्लिक पॉवर्टी बाय कोविड, नो वर्क, साइक्लिक पॉवर्टी, हेल्थ एक्सरसाइज, सिमिलरली सोशल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो गॉट स्ट्रेन, आशा वर्कर्स। तो यानी चाह कर भी आपने लास्ट में जरूर बताया इंक्रीजिंग पीएचसी, टैकलिंग जूनोटिक डिजीजेज, आई थिंक वंडरफुल रिटर्न, क्यूरेटिव केयर, पेंडेमिक इंश्योरेंस, पेंडेमिक फंड एंड ड्राई नन, वेरी गुड, दस पेंडेमिक नीड्स बोथ इंडिविजुअल सोसाइटी। तो पहले दो आंसर पढ़कर हम ये कह सकते हैं जिसने भी आंसर लिखा है वो ईमानदार अप्रोच से काम कर रहे हैं, वो ईमानदार हैं, वो जो बोला जाए उस बात को समझते हैं, वो एक अधिकारी जैसा होता है, टेक्निकल अधिकारी जैसा होता है वैसे लक्षण है इन आंसर्स में। वो इस प्रकार के आइडिया शोकेस कर रहे हैं आंसर की। आपको यदि कोई एक डिपार्टमेंट के अंदर कोई चीज दी जाए, आपको स्पेशलाइजेशन दी जाए, तो आप उस स्पेशलाइजेशन को बिना गलती के कोशिश करेंगे करें। आंसर में अनप्रिडिक्टेबल डायनामिज्म और आंसर के अंदर जो नई सोच, आगे बढ़ना और नए विजन को देना, ऐसा थोड़ा कम है, स्पेशली इन द सेकंड आंसर। फर्स्ट आंसर तो उस अप्रोच से हम कुछ कह सकते हैं, सेकंड को हम नहीं कह सकते। सो COVID-19 was a short term challenge but a long term boom, long term boon, okay, I'm so sorry, long term boon for India if the lessons are implemented. I think ये challenging statement है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है और ये रिस्की स्टेटमेंट भी है। ये एग्जामिनर को चाहता है कैंडिडेट दैट प्लीज लुक एट मी, दैट व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई कैन राइट। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज, मिसमैच इन कैपेसिटी इन प्राइमरी टू टर्शियरी हॉस्पिटल्स, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसमें डेटा आना चाहिए था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने क्या बोला, साथ साथ में नीति आयोग ने क्या बोला, साथ में जो है आपका अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने क्या बोला, या फिर अगर आप पब्लिक पॉलिसी, फाइनेंस ऐसे, या फिर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीजेस, तो वो आपको चीजें, यानी इंडिया का जो स्ट्रक्चर है टर्शरी हेल्थ केयर के लिए, उसमें गवर्नमेंट सिस्टम कैसे आगे फ्यूचरिस्टिक प्लान कर रहा है, या फिर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन हेल्थ केयर, ऐसे करके चीजें आपको लानी पड़ेगी। तो डॉक्टर पेशेंट रेशियो ठीक है, लॉट ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ठीक बात है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ब्लैक मार्केट फ्लोरिश बिल्कुल सही बात है, एब्सेंस ऑफ हेल्थ रेगुलेटरी बॉडी वाज फेल्ट लाइक वी हैव IRADI, RBI, DGCA नहीं, हेल्थ रेगुलेटरी बॉडी तो है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है नेशनल, उसके बाद आपका ड्रग के लिए भी है, ड्रग DGCI है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी है, रेगुलेटरी बॉडी है, बट द पॉइंट इज यू हैव टू ब्रिंग देम हियर एंड देन यू हैव टू शोकेस व्हाट दे कुड हैव डन और व्हाट दे मस्ट डू बेटर। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है, डेडिकेटेड ऑक्सीजन ट्रेन है, डिमांड, तो यानी माइक्रो लेवल के ऊपर दोनों आंसर बहुत अच्छे हैं। दूसरे आंसर में पहले आंसर के मुकाबले थोड़ा विजन ज्यादा है, लेकिन ये भी कोई ऐसा, मतलब ये वही वाली बात है, दूसरा आंसर वैसे ही है जैसे कि आपने 7 स्टार बैंकेट हॉल में पार्टी तो रखी और जो लोग आए उनको ये तो पता है कि जो पीछे हलवाई खाना बना रहे हैं वो जबरदस्त खाना बना रहे हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन जब होगी तो, और जब लोग 4 4 पैक भी लगा चुके हैं, तो उसके बाद किसी को हलवाई नहीं चाहिए, किसी को बस जल्दी चाहिए और उसको ठीक से चाहिए। वेटर जो है अंदर कुछ भी हो लेकिन उसके हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, तो प्रेजेंटेशन मेक्स अ डिफरेंस। और क्या माइक्रो मैक्रो एलिमेंट आप डालते हो वो भी इट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, तो ये बड़े वैसे वर्ड्स हैं जो पूरी तरीके से नहीं लिए जा सकते। पहले भी वो साइक्लिक पॉवर्टी इज बेटर देन रादर देन राइटिंग एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि आप उसको प्रूव नहीं कर सकते कि ऐसा है भी। रिवर्स माइग्रेशन इज अमेजिंग एंड वंडरफुल पॉइंट। और स्ट्रेन सोशल इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, आपको नाम लाने चाहिए थे। क्राइम रेट, रोज अगेंस्ट वुमेन, शटडाउन ऑफ स्कूल, तो यानी क्वेश्चन तो नेगेटिव है, तो इसीलिए क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन आपको करना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं किया, पहले वाले आंसर ने किया। कुल मिला के पहले वाले आंसर और दूसरे आंसर में दोनों में अच्छे एलिमेंट्स हैं, लेकिन दोनों ही पूरे नहीं है, इसीलिए दोनों ही एवरेज से कम या एवरेज जितना स्कोर ला पाएंगे। India spending on healthcare comparatively better lower than many other countries. Many other countries highlight COVID-19 pandemic scenes of hospital running, और ठीक बात है, चलो इंडिया में शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। तो क्वेश्चन तो जस्टिस अगर करने की बात की जाए तो तीनों क्वेश्चन, यानी ये तीसरा क्वेश्चन भी पहले दोनों क्वेश्चंस की तरह जस्टिस कर रहा है, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे लीनियर नैरेटिव होना बहुत मुश्किल है। यू मस्ट लर्न टू ब्रिंग योर ओन क्रिटिकल एलिमेंट वेदर इट इज आस्क्ड और नॉट, बट इन ए सटल मैनर। सोशल प्रॉब्लम की बात हो रही है, चलिए आगे चलो, रिस्क एबिलिटी, चलो आगे चलो, लो
लॉस ऑफ लाइफ, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, पीपल वर पॉवर्टी इनिशियली, वाइडेंड, ठीक बात है, यानी कि क्लैरिटी ऑफ थॉट आंसर में है, लेकिन ये आंसर की जगह ये प्रैक्टिस ज्यादा है, इसीलिए आपकी गलती नहीं है। चलिए आगे। बिगेस्ट टास्क पेंडेमिक वाज बिहेवियरल चेंज, आई लाइक दिस पॉइंट, ये कहीं नहीं आया था अभी तक दोनों में, ये यहाँ आया। एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एनजीओ सब जगह ही आया था। आई थिंक दिस इज अ न्यू पॉइंट व्हिच प्रीवियस कैंडिडेट्स कुड हैव टेकन इनटू अकाउंट। इंडिया की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात भी कर दी। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, फटाफट आगे चलिए। One answer I believe that is missing. That's okay. The 1962 Indo-China War was the amalgamation of international politics and forced India to shift its foreign policy. बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी शुरुआत में बात बोली। पॉलिटिक्स विद इन चाइना, उस आंसर में जो हमने पहला आंसर पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त था, इसके मुकाबले ये थोड़ा नैरेटिव में है, और उसमें जो वर्ड यूज किए गए थे वो ज्यादा अफेक्टिव और ज्यादा नॉलेजेबल हैं। यहाँ पर जीएस के हिसाब से भी ना मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लैरिटी ऑफ थॉट देखेंगे तो उस आंसर में ज्यादा हो रहा था। यहाँ पर फैला हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास की वोकैबुलरी थोड़ी कम है, इसीलिए हमें नैरेटिव बनाना पड़ रहा है। ये यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है। चलिए आगे। इन्फ्लेशन की बात की, इश्यूज विद इंडिया में आ गए, पॉलिटिक्स बिटवीन चाइना एंड यूएसएसआर, ठीक है, ये वहां पर भी था लेकिन ज्यादा अच्छा था, ये भी सही है। रिविजनिज्म की बात कर दी, बॉर्डर का, उस आंसर में फ्लो इस आंसर से ज्यादा था, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी तो आई वुड डिस्कस विद यू पीपल। चाइना एंड इंडिया, चाइना असर्टेड तिब्बत की बात लाकर इन्होंने अपना आधा नंबर बढ़वाया, दलाई लामा की बात करके, अरुणाचल प्रदेश, चाइना फॉरेन पॉलिसी। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। सिविलाइजेशनल सुप्रीमेसी तो ठीक है, एवरेज मार्क्स तक खींच जाएंगे। आई थिंक इट्स अ गुड एफर्ट, ऑन ट्रैक, पर थोड़ा सा लॉप साइडेड है। लीडिंग ग्लोबल साउथ, डेमोक्रेटिक मल्टीपोलर एंड ऑल दैट। चलिए आगे चलिए, आइए। 1962 Indo-China War have to been seen a major watershed in terms of changing relations with our largest neighbor. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पहले ही लिख दिया, क्योंकि इंडिया सेंट्रिक है, एग्जामिनेशन है। हिंदू चीनी भाई भाई, ये तो मतलब एक वो है, मतलब दिस वाज अ गॉसिप काइंड ऑफ थिंग विद इन चाइना। सीपीसी डिवाइडेड, चलिए, फ्रेंडली एग्रेसिव टेरिटोरियल पॉलिसी, अच्छा लाइन है, दलाई लामा की बात डाली, यानी कि जनरल बातें पहले डाली, जबकि हमने जो पहला आंसर पढ़ा था उसके अंदर वाकई क्लैरिटी ऑफ थॉट था, लेकिन यहाँ पर कैसे कम आते हुए भी आप लिखते हो ये दिखाई दे रहा है, बिना किसी क्लैरिटी के। तो इस आंसर में और इससे जस्ट हमने इमीडिएट प्रीसीडिंग आंसर दैट वी हैव रेड, बोथ आर कंपीटिंग विद ईच अदर, so it is not be surprising that the answer that is written previous to this answer, if all the answers are written the way they are asking for and the way it is demanding, the uh, demanding approach is there, and then you are getting marks, तो स्कोर उसमें भी आएगा, स्कोर इसमें भी आएगा। पंचशील प्रिंसिपल्स, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस, ये नहीं पूछ रहा है, ये मतलब जो बात पूछ रहा था, नॉन डिमार्केशन एंड एग्रीमेंट, हाँ ये पॉइंट है, मैकमोहन लाइन की बात है, जनरल आइडियाज है, चाइना यूएसएसआर इन्होंने बाद में रखा, हमने इसको पहले रखा था। ये भी एक चीज सोचने वाली बात है, इंडिया की बात, इंडिया से जुड़ी हुई चीजें हमेशा पहले लेके आइए। असर्टिंग सुपीरियोरिटी, डिस्प्लेइंग मिलिट्री माइट, चलिए आगे चलिए, फेवरेबल टू रशिया। Even the timing of the war coincided with the Cuban Missile Crisis. This is one extra point. So desire for territory making, देखिए चाइनीज नेशनहुड की हमने भी बात की, लेकिन हमने ज्यादा उसमें बात की है। डिजायर टू असर्ट कंट्रोल इन द नेबरहुड, ये हम बात बता चुके हैं। इकोनॉमिक कंसिडरेशन, कल्चरल कंसिडरेशन, असिमिलेशन ऑफ तिब्बत हमने नहीं बोला कहीं पर भी इस तरीके से, बोला भी है तो फैल गया है। बात अगर एक आंखों से हो सकती है तो आप बोलते हो, बोलने की बात है तो आप भौंकते हो, तो वो नहीं चलेगा, यानी देखना पड़ेगा कहाँ पर कितना क्या है। चलिए आगे। कम शब्दों में अगर बात हो सकती है और कुछ और नया बता तो बताना पड़ेगा। कोविड-19 पैंडेमिक बियॉन्ड द मेडिकल डोमेन हैज बिकम ए मार्कर ऑफ टाइम, हमने भी लिखा, बिल्कुल सही बात है। सोशल फैब्रिक की बात हमने बाद में की, यहाँ पहले स्ट्रक्चरल इक्वलिटीज, पॉवर्टी बोला, इनइक्वलिटी बोला, इनफॉर्मल वर्कफोर्स बोला, लेकिन हमने जो है पीडब्ल्यू रिसर्च, ऑक्सफैम यूनिवर्सिटी, वायरस वेल्थ ऑफ इंडिया, ये सब हमने नहीं दिया, इसी वजह से हम थोड़ा पिछड़ जाएंगे। हम प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए, हम जो है कैट वॉक नहीं कर पाए, 83% नहीं बता पाए। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमने बोले, लेकिन कितने बड़े हमने वो नहीं बताया। हमने हर जगह डेटा से इलस्ट्रेट नहीं किया। रूरल बिहार, यूपी, फ्लोटिंग बॉडीज का फिनोमिना जो गंगा में था वो हमने नहीं लिखा। उसके बाद सीएससी, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट हमने नहीं बोली थी, 375 बिलियन चिल्ड्रन की फैमिली का हमने नहीं बोला। लिटरेचर ऑफ डिवोर्स ड्यू टू कोहैबिटेशन, देखिए कितने कितने मतलब कि इंपॉर्टेंट, किंतु आम आदमी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, वो बात की गई। केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ओल्ड एज होम्स, चलिए आगे चलिए। येट philanthropic work by Azim Premji Foundation, Sonu Sood, encouraging Gandhi's stewardship model,
गवर्नमेंट गरीब कल्याण योजना, एम्प्लॉयमेंट मैपिंग स्टेट, तो नंबर ले गया, आगे चले गए, यहाँ पर आएंगे 5, वहां पर आएंगे 3। डी ग्रोथ यानी एक ही आंसर में कितने सारे डायमेंशन और चीजें लाई गई, ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। दैट्स व्हाट वी कैन से, and we must learn and appreciate the same, and we are going to inculcate the same. I am for sure a firm believer in that confidence. Thank you very much. So पार्थ बाबू, जो भी आपका नाम है, बताइए। सर थोड़ा नरेशन कम करना है, स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करने हैं और डाटा प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। कैसे होगा ये? सर डेली जो हम काम कर रहे हैं उसी को मन से करें और उस काम को हम लाइटली ना लेके उसकी मैनिफेस्टेशन अपने अंदर डालें तो हो जाएगा। जैसे कल हमारे एक कैंडिडेट ने लाइट में नहीं लिया था हिस्ट्री के आंसर्स को, वैसे ही लाइटली कह रहे हैं आप? जी सर। वैसे ही लाइटली कह रहे हैं? ओके, तो लाइटली नहीं लें तो कैसे लें? सर लाइटली कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम कोई डाटा पढ़ते हैं, फॉर एन एग्जांपल न्यूज़पेपर अगर हम कवर करते हैं तो वहाँ पर कई बार ऐसे डाटाज होते हैं जिनको हम ये सोचते हैं कि डाटा है, ये काम का नहीं है। लेकिन जो टॉपर होता है वो यही सोचता है कि ये डाटा है, यही असली काम का है। तो वो एटीट्यूड बेसिकली जनरेट करना ओके, यानी कि आपको क्या लगता है कि ये सारा डेटा जो एग्जाम जो लिख रहा है टॉपर, क्या उसको लिख के रख लेता है वो? नहीं सर, वो रटता नहीं है, बट उसको ध्यान रहता है कि जो मैंने पढ़ा है वो मैंने पढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने पढ़ा सो मैंने पढ़ा, आई लाइक इट। आई होप द सेम एंड विश फॉर यू। थैंक यू। वेलकम। ओके आंचल, व्हाट डू यू से? Not to write just question, but try to bring it in dynamic way with the question demand. Okay. कितना मेरे को सीखने को मिलता है आप लोगों से, डेली मैं सीखता हूँ क्या चाहिए क्या चाहिए, आप लोग मुझे रोज बताते हो ये चाहिए ये लाओ ये लाओ, मैं रोज कोशिश करता हूँ मैं लेके आऊँ। इतना कुछ मुझे सिखाया आप लोगों ने, मैं आई कांट थैंक यू इनफ। हाँ, सीखा तो मैं सीखता ही, जब आपसे मैं पूछता हूँ कोई आंसर आपने लिखा और आपसे मैं पूछता हूँ क्या करना चाहिए, तो आप इतना अच्छा बताते हो कि आंसर में ये आना चाहिए, आंसर में ये आना चाहिए, तो कितना कुछ है मेरे सीखने के लिए। मानसी, व्हाट डू यू से? तो मोर ऑफ डेटा टू सब्सटैंशिएट, तो थोड़ा वो और सब्सटैंशियल लगेगा। प्लस सोल्यूशन ओरिएंटेड आज नहीं था। सॉल्यूशन। उसकी बात नहीं हुई बीच में, मतलब चैलेंजेस और आंसर सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है कि पर्सन सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है? जब पर्सन होगा तभी आंसर सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा। चलो ठीक है। ओके, व्हाट डू यू से मिस्टर आशिक? तो वही कि डेटा यूज करना चाहिए, और दो तरह का से डेटा होता है सर। जैसे या तो इनबिल्ट होता है, इनबिल्ट आप कर लेते हैं, इनवाइब कर लेते हैं, या तो फिर आप एक जगह लिख लेते हो, याद करके हम्म। उसको आप पोर्ट्रे कर, एग्री। दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस कब है। तो अभी डेटा का अभाव से भी थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन सर वो उसको कर सकते हैं, बाद में जब रिवाइज करेंगे न्यूज़पेपर जो डेली, उसके बाद फिर लिख सकते हैं। और सॉल्यूशन ओरिएंटेड लास्ट वाला भी था, मैंने भी दिया था, लेकिन मेरा थोड़ा टेक्निकल था। सॉल्यूशन ओरिएंटेड था, लेकिन उसने जो डाइवर्स विमेन अलग, ट्राइबल अलग, एससी अलग, तो सबके हिसाब से उन्होंने बताया, जैसे मेरा मैंने, तो मल्टी डायमेंशनल स्टेक होल्डर उन्होंने बताया, तो ऐसे हम्म। ओके, तो मतलब attitude, personality, behavioral change, all these ideas are going to help. I'm very sure. यस सर। So, there's something, Karuna, what do you want to say? तो जो मॉडल आंसर्स थे वो ज्यादा प्रिसाइज एंड इंटीग्रेटेड थे, तो उनमें Precise, डायमेंशंस अलग से विजिबल हो रहे थे उनमें। visible हो रहे थे। तो अपने वाले में कैसे हो विजिबल हो, क्या किया जाए जिससे उस तरफ आदमी जल्दी बढ़े? बढ़ तो जाएगा ही, लेकिन एक घिस घिस के बढ़े और एक थोड़ा सा, कैसे हो? तो मेरे अकॉर्डिंग जो डेली हमारी प्रैक्टिस है उसी में इम्प्लीमेंट होगा, तभी आंसर्स में आ पाएगा। ये न्यूज़पेपर बात, पढ़ते हुए या इन जनरल पढ़ते हुए। यानी न्यूज़पेपर जब हम डिस्कस करते हैं या जो हम स्ट्रैटेजी से कर रहे हैं, उसके अंदर भी अपने आप लाना चाहिए। आपको असल में व्यवहार ही ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा
मतलब ये अलग अलग एलिमेंट्स तो आते ही हैं। मतलब आपकी अवेयरनेस कितनी है, आप ये सोचिए। बेसिकली इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। आजिम प्रेम जी मत लिखो। आप आजिम प्रेम जी नहीं लिख रहे, कोई बात नहीं, अरे आप कुछ भी नाम लिख दो, मैं तो कहता हूँ रामकिशन एनजीओ लिख दो, हु केयर्स, देयर मस्ट बी एन एनजीओ कॉल्ड रामकिशन, हु केयर्स। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम वो ऐसा सोच के लाते ही नहीं है। अजीम प्रेम जी तो बाद में आएगा। अजीम प्रेम जी अगर कोई उठा के ला रहा है, यानी कि वो सोचो कि वो जब आप कुछ कर रहे हैं तो वो भी वही कर रहा है, लेकिन वो सेम चीज नहीं कर रहा है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पता तो आपको भी है, अजीम प्रेम जी, मैंने आपसे पहले ही बोला नेशनल फैमिली हेल्थ फेयर ले आओ, आप नीति आयोग ले आओ, आप मतलब वही वाली बात है कि अ, कोई वो हिंदी में कहावत है कि पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से बोए। तो हमें आम का ही पेड़ बोना है, बबूल का पेड़ बोके तो आम नहीं खा पाएंगे हम। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट फर्स्ट आंसर वाज वेल रिटन एज फार एज यूएसएसआर एंड चाइना एंड ऑल दैट इज कंसर्न। डिजिटलाइजेशन 2 लाइनों में एक साथ लाने की जरूरत नहीं थी। अरे एक बार झेल गया एग्जामिनर उस वर्ड को, फिर ऐसे आप अगले लाइन में फिर से उसको ले आए, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ये थोड़ी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि ग्राम पंचायत में जाकर आप बार बार एंड देयर वॉइस बर्बरी एंड मैं तो सिर्फ माता जी प्लीज, माता जी मैं लस्सी नहीं पीता, आई ओनली गो फॉर 0 कैलोरी, तो ये नहीं चाहिए भाई। तो हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। आप एक बार डिस्टिलेशन ले आए, हो गया, लेकिन आप उसको फिर से ले आए उसको, यानी कि वही है बस नशा। हमारे पास नशा है तो हम कुछ भी करेंगे, तो ऐसा नहीं चाहिए। Otherwise, I think on track. Wonderful. Good job. Great efforts. And we'll continue. Thank you very much.